motive behind creating IMC or connecting various promotional tools together, so there are two other perspectives also. That is, one is it is customer centric, and other one is it is a data driven. How it is customer centric? It is customer centric. Reason behind that is whatever IMC we are creating, whatever integration we are creating, why we are just creating this just to कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम टाइम में कम्युनिकेशन हो पाए और ज्यादा क्लियरली हो पाए. तो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कस्टमर, तो इट इज कस्टमर सेंट्रिक. बिकॉज हमारा मोटिव प्रमोशन का सिर्फ यही होता है कि हम मैक्सिमम लोगों को एट अ टाइम में information provide kar paए, awareness kar paए. So first thing that will be with the IMC, it has been there, that is with the customer centric. And the second another perspective, that is with the data driven. What is data driven? Again मैंने आपको बार बार ये बताया है कि मैन्युफैक्चरर्स का या मार्केटर्स का मोटिव आपका प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता. मैन्युफैक्चरर्स का और मार्केटर्स का मोटिव जो होता है वो होता है ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन मिले और ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में पर्टिकुलरली इन्फॉर्म्ड रहे, या उनको पता रहे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, उसके ये फीचर्स है, द पर्टिकुलर थिंग्स आर बीन वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रांड लिस्टिंग एंड सो ऑन. So data driven means the IMC is going to generate a large number of information, number of data or the prospects into the market. For example, if you are going to have a particular integration of communication with the internet marketing, or simultaneously you are using with the telephonic marketing, simultaneously you are using with the advertisement mode also with the television or radio and something like that, आपने इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी. इसके साथ में जितने लोगों ने इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रिस्पॉन्ड किया उन सबके तरफ से आपके पास डेटा आ जाएगा और इतना डेटा आपके पास क्रिएट हो जाएगा जितना आप अगर एक सिंगल मोड ऑफ प्रमोशन या टूल यूज करते तो इट विल बी नॉट इनफ for that particular thing. So IMC is also known for the data driven type of thing. So आपके पास large number of information will be gathered जो सिर्फ एक single information promotional tool से नहीं हो पाती. So this is another perspective कि why a marketer must use with the IMC. Okay, come to the next. That is why the reason for growing of IMC or the importance of IMC, why the IMC is so important for the marketers, or why the maximum people or maximum manufacturers are going towards IMC rather than of individual promotional tools. The first reason is a shifting of marketing dollars from media advertising to other forms of promotion. What is media advertising? Media advertisement is only relevant to the television advertisement or radio advertisement or जो traditional promotional tools available थे उस पे ही पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट होते हैं मीडिया एडवर्टीजमेंट जनरली. बिकॉज द मीडिया इज बिन शिफ्टिंग, बिकॉज द एडवर्टीजमेंट टूल्स आर बिन शिफ्टिंग. पहले जो आपके सिर्फ बिलबोर्ड से काम हो जाता था, आजकल डिजिटल बिलबोर्ड्स है, डिजिटल और टेलीविजन आपकी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी रहती है रोड साइड पे. द रीजन बिहाइंड दैट इज इट इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड ओनली इंफॉर्मेशन इन अ बिलबोर्ड, कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक पर्टिकुलर थिंग को पढ़े और उसके बाद उस पर रिस्पॉन्ड करे. तो उसके लिए क्या हुआ, टेलीविजन लगा दिया कि जो, या एक डिजिटल पर्टिकुलर साइन बोर्ड लगा दिया जो इतना ग्लो करेगा या इतना अट्रैक्टिव रहेगा, इतना क्रिएटिव रहेगा कि पीपल आर व्हेन दे आर बीन मूविंग आउट ऑफ दैट सो दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स टूवर्ड्स within a fraction of seconds or within a very few particular time period. So the thing is, because the media advertisement has been getting traditional and other forms of advertisement, maybe with the social media, maybe with the internet, ज्यादा लोग टेलीविजन के थ्रू लोगों के पास टाइम नहीं है कि जो टेलीविजन देखे. अगर आप अभी का सिनेरियो छोड़ दें, क्योंकि आजकल के में तो आपके पास एक बोर्ड है कि टेलीविजन और इंटरनेट दो ही चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. बट अगर आप अदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करें तो टेलीविजन देखने का टाइम किसी के पास नहीं होता, रेडियो सुनने का टाइम किसी के पास नहीं होता. तो ये जो पुराने मीडिया एडवर्टीजमेंट है वो बिकॉज शिफ्ट टूवर्ड्स अदर फॉर्म्स में होते जा रहे हैं. तो आपको आईएमसी इंटीग्रेशन करना जरूरी है, या एक रीजन है कि क्यों आईएमसीज आर बीइंग ग्रोइंग. द सेकंड थिंग इज अ मूवमेंट अवे फ्रॉम रिलाइंग on advertising focused approaches to solve communication problems. Now this is again a very big thing towards the advertisement, because towards the using of IMC. The reason behind that is, पहले क्या था, advertisement का मतलब
कि आपको एक प्रोडक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, उसका अवेयरनेस फैलाना है, दैट्स ऑल. The information, the specification, the things are being given to you, and that's okay, and that will be enough by the marketers, and it was enough for the customers also. But what is right now, it is not enough. ये कैसे काम करेगा, ये कितने दिन तक चलेगा, इसके साथ में वारंटी है कि नहीं है, इसकी गारंटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसका सर्विस कहाँ मिलेगा, या इसकी कस्टमर सर्विस आपको कौन से एरिया में अवेलेबल है कि नहीं है. इतने क्वेश्चंस जो पर्टिकुलरली कस्टमर्स के माइंड में है, उसका सॉल्यूशन भी एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन के थ्रू मिलना जरूरी है. क्यों जरूरी है? बिकॉज इतने ऑप्शंस आपके पास राइट नाउ है. अगर आपका मार्केटर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देगा तो आप उस मार्केटर्स के पास नहीं जाएंगे. आप आज के डेट में टाटा की कार, या यू मे से रेनॉल्ड्स की कार, या यू मे से अदर पर्टिकुलर मित्सुबिशी की कार, और यू मे से अदर पर्टिकुलर ब्रांड्स ना लेने की जगह पे आप मारुति प्रेफर क्यों कर रहे हैं? द रीजन बिहाइंड दैट इज उसके सर्विस सेंटर्स आपके पास है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो आपको, उसके पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल है. सो दैट बिकॉज दे आर बीइंग प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, एंड हाउ इट इज बीइंग true. The reason behind that is just they are being promoting themselves because of the solution of the problem. The thing is like that, why people are getting, and why manufacturers are getting using IMCs, or why they should use. The reason behind that is advertisement का मतलब सिर्फ अवेयरनेस नहीं रह गया है आज के डेट में. जब तक आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अच्छा जो आपकी टेली मार्केटिंग करती है, टेली मार्केटिंग क्या करती है? टेली मार्केटिंग आपको प्रोडक्ट दिखाती है, उसके बाद उसका यूसेज दिखाती है, उसकी कितने टाइम पीरियड में पर्टिकुलर वो यूज कर सकते हैं, उसके साथ वारंटी क्या है, कैशबैक, एवरी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो आपको ये भी बोलते हैं कि आपको अगर बाय करना है तो आप अभी बाय कर लीजिए, और अभी नहीं बाय कर सकते तो आप हमारी वेबसाइट में जाइए, आप बाय कर सकते हैं. एडवर्टीजमेंट के साथ में उन्होंने पर्सनल सेलिंग को ऐड किया है, और उसके साथ में दे आर क्रिएटिंग विद द पब्लिक रिलेशन, एंड साइमल्टेनियसली दे आर यूजिंग विद द डायरेक्ट मार्केटिंग. They have integrated. Why? Just to provide the solution of the problem. The thing is like that again is IMC is been because the market is moving from advertisement only to the solution of the problem, so that IMC must be used. Let's continue with the next. Next point is a shift in marketplace power from manufacturers to retailers. Again, because manufacturers power, what was the manufacturers powers actually? Any idea? What was the manufacturer's power? Anybody? What is manufacturer's power? It's like वो जो बनाते हैं वही चलेगा, मतलब मार्केट में. Yes, the traditional approach था basically, है ना? जो traditional approach था, what was the traditional approach? Traditional approach was what manufacturers are going to build up or they are going to produce, that is only going to be sold in the market. But आज के डेट में retailers के पास power कैसे चली गई है? क्यों? Because retailers are the people, those are being directly connected from towards the customers. तो जो रिटेलर्स बताएंगे वही मैन्युफैक्चरर्स बनाएगा, और जो मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे वही पर्टिकुलर मार्केट में सेल होगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरर वही बना रहा है जो आपका रिटेलर बता रहा है. तो रिटेलर की पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज कस्टमर्स आर बीइंग डायरेक्टली कनेक्टेड टुवर्ड्स द रिटेलर, so that the particular shift of marketplace is from manufacturers towards the retailer. तो communication जो है वो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको रिटेलर्स के साथ भी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, rather than only providing information towards the television for the customers. They're only providing information to the particularly people through any of the promotional mode. They have to communicate with the retailers and even with the channel of distributions or with the intermediaries, so that the things will be clear to them also, and the particular they are going to clear things to the customers. So the thing is, again, IMC is important because integration of all the peoples are being important in this particular thing, and more important is with the retailer. Come to the next, the rapid growth and development of database management. Again, CRM, you are reading with the CRM, customer relationship management. It is again a very important and very good subject. Why you are reading so? The reason behind that is customer service. Customer create करना और customer को रखना बहुत बड़ी बात, बहुत different है. The things are being too different. The reason behind that is
How you will create a customer, it's okay. Nowadays creation of customer, आप एक टाइम पीरियड में सेल्स ऑफर्स दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, फ्री कूपन बांट दीजिए, फ्री सैंपल दे दीजिए, पीपल आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। बट वो फिर से बाय करने आएंगे क्या? बाय करने फिर से आए, उसके लिए आप क्या करेंगे? यू हैव टू मेंटेन द डेटाबेस, यू हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर डेटाबेस। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए आपको बार बार कस्टमर्स को अप्रोच करते रहना पड़ेगा, उनके बर्थडेज में, उनको ओकेजन में। देन अगर आप इंडिविजुअली, आपका बहुत बड़ा रिटेलिंग यूनिट है, यू कैन नॉट कनेक्ट इंडिविजुअल पर्सन इंडिविजुअली, तो आप क्या करेंगे? आप उनको ऑफर्स देंगे, आप उनको सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स देंगे, आप उनको रिमाइंड कराएंगे कि देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नाउ इट इज बीन प्रोवाइडिंग विद द ऑफर। सिर्फ मार्केट क्रिएट कर लेने से नहीं होगा, आपको क्रिएशन के साथ में कस्टमर्स को उनको भी रखना पड़ेगा। तो रखने के लिए यू हैव टू मेंटेन विद द सीआरएम, एंड सीआरएम जब आप करते हैं तो कस्टमर सर्विसेज होती है, और सीआरएम के लिए आपको डेटाबेस चाहिए होता है। तो ये डेटाबेस मार्केटिंग आप क्रिएट कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक आप बार बार आईएमसी, बार बार प्रमोशन नहीं करते रहेंगे, बार बार वेरियस टेक्निक से प्रमोशन एक्टिविटीज को क्लब करके नहीं रखेंगे, तो पर्टिकुलरली आपके कस्टमर्स का डेटाबेस नहीं बन पाएगा। आपको कूपन मिलता है 3000, आप बाय करिए, 3000 पे 5000 ऑफ है, 5000 ऑफ है जो आपको नेक्स्ट 15 डेज में बाय करना है। तो मतलब आप फिर से रिवर्ट वापस जाने वाले हैं उस स्टोर में, बिकॉज आपको 5000 का कूपन मिला है। तो द थिंग इज लाइक दैट, आपके एक सिर्फ बाय विजिटिंग पर्टिकुलर रिटेलिंग स्टोर, आपको उन्होंने एक डेटाबेस मैनेज कर लिया, आपके डिटेल्स ले लिए, और उस डिटेल्स के थ्रू में वो अगेन आपको बुला रहे हैं 15 दिन के बाद। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है, उन्होंने एक प्रमोशन एक्टिविटी आपको एक पर्टिकुलर प्रमोशन के थ्रू आपका डेटाबेस कलेक्ट कर लिया है। अब आप फिर जाएंगे, फिर वहां स्पेंड करेंगे, और वो फिर आपको ऑफर देंगे, ताकि आपका वो कनेक्शन और वो एक पर्टिकुलरली कस्टमर रिलेशनशिप बना रहे। So the thing is, why you are using going with the IMC? The reason is because there is a database marketing again, which is very important, and for that you have to go with IMC. Next is demand for accountability for advertising agencies. Who are the advertising agencies? Advertising agencies are the people those are going to correct. मैम वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, कैसे करोगे? जस्ट मैं आपको बहुत बात करती हूँ। माय गॉड, अब देखना, ठीक है? अब मैंने ये और करके रखा है, तो शायद इसमें इजी पर क्लियर है ना? नाउ इट इज क्लियर? यस मैम। हेलो? यस मैम। नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज क्लियर। जहां ब्रेक होना स्टार्ट होती है ना, आप वहीं बता दीजिएगा, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट अगेन। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। Demand for greater accountability for advertising. Who is the advertising agency, or which is the particular those are organizations which is existing between manufacturers and the customers के बीच में एक advertisement agency रहती है। हम आगे पढ़ेंगे कि those are people, those are been going to create this particular channel, कि कैसे आपके टेलीविजन में एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट हो जाता है, कैसे एक रेडियो में एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है, कैसे एक पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आप पब्लिश कर सकते हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू रीड इट अगेन इन द फर्दर क्लासेस. But the thing is, advertising agencies are the people those are going to create advertisements for you or the promotion activities for you. आज के डेट में एडवर्टीजमेंट एजेंसी सिर्फ आपके एक मोड पे काम नहीं करती है, आपके नंबर ऑफ मोड्स पे, और सबको एक दूसरे से कनेक्टेड करके, मतलब आपके टेलीविजन का जो एड है वो आपके रेडियो पे भी वैसे ही आना चाहिए। आपको कैसे पता चलता है कि जब एक म्यूजिक बजता है किसी पर्टिकुलरली एडवर्टीजमेंट का या एक प्रोडक्ट का, तो साइमल्टेनियसली आपको रिमाइंड हो जाता है कि ये तो हमने वहां पर भी रेडियो में भी सुना था, या इस टाइप का सर्टेन फीचर्स जो है वो मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा है। So this particular type of connectivity is being made by the advertisement agencies. The creativity, which will be known as a creativity. Again, there is a particular topic which is creativity, which we have to read a particular third unit का एक पूरा major है कि how the creativity happens and how you can create a particular connection between various IMCs.
The thing is like that, because there is lot many things to work in the market. आपकी एनिमेशन जो इंडस्ट्री है, एनिमेशन इंडस्ट्री में आपके पास इतना स्कोप है. अगर आपको एक्चुअली इस फील्ड में जाना है जो एडवर्टीजमेंट है, तो आपको एनिमेशन भी थोड़े बहुत सीखने पड़ेंगे. तो बिकॉज उसमें आपके जस्ट सी द कार्टून चैनल्स में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, कितने ज्यादा पर्टिकुलरली कुछ भी आप ड्रॉ कर लीजिए एंड एक कनेक्शन बना लीजिए, चिल्ड्रन आर गोइंग टू वॉच इट. द पर्टिकुलर स्कोप इन दिस इंडस्ट्री इज टू मच. एनिमेशन, तो एडवर्टीजमेंट में अगर आपको जाना है तो एनिमेशन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, वो दैट विल क्रिएट इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फील्ड. So the thing is, because एडवर्टीजमेंट एजेंसीज के सामने इतनी ज्यादा पर्टिकुलरली डिमांड ऑफ क्रिएटिविटी है, for that only again the IMC works, because they have to connect together towards the number of things and उसके बाद उनको वो चीज को प्रेजेंट करना है. तो इस चीज का बिकॉज स्कोप बहुत ज्यादा है या बढ़ रहा है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ रहा है, इसलिए पर्टिकुलरली IMC का अगेन ग्रोथ इज बीन पॉसिबल. And the last, that is the rapid growth of the internet. As you know very well that internet right now everything, again मैंने बोला है आज के डेट में आपकी बेसिक नीड में इंटरनेट आ गया. बेसिक नीड आज इफ विद द टुडेज सिनेरियो यू विल सी, और आज तो ठीक है एक्सट्रीम लेवल पे जरूरत है. अगर आप इतना ज्यादा नहीं देखेंगे तो बेसिक में भी देखेंगे तो इसके पहले भी हमको इंटरनेट के बिना वी कांट डाइजेस्ट एनीथिंग. The reason behind that is internet is everything right now. The rapid growth of internet is been again going to have हर चीज की आपको कनेक्टिविटी के लिए, हर चीज के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, हर चीज को मैच करने के लिए there is a need of internet only. Even for a food, asking for a food you have to go with the internet. Again for a studies you have to go with the internet. For buying of the clothing you have to go with the internet. आज के डेट में तो बिना इंटरनेट के कुछ नहीं हो सकता. Then the next, that is the promotion, communication and bias perception. How it works actually. What is the bias perception actually? What is the buyer perception? As we can see, buyer क्या सोच के रखता है, या आपके एक प्रमोशन एक्टिविटी करने से पहले आपके पास क्या होता है, आपके पास आप क्या सोचते रहे, या आप एज अ मार्केटर व्हाट आर द थिंग्स इनटू योर माइंड व्हाइल यू आर बीन मूविंग फ्रॉम टुवर्ड्स अ पर्टिकुलरली प्रमोशन एक्टिविटी. और आपके एक प्रमोशन एक्टिविटी ड्रॉ करने से पहले व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. As you can see in the slide, there are various objectives on the basis of which a promotion activity is being drawn. The first particular thing which comes, there are certain objectives which is going to tell you that this type of promotion activity you must draw, or you must select either of these or a combination of these, and then it will be in the market or in the particular means on air. It will be by either by the print media, or it will be by the audio visual media, or it will be by newspaper, or it will be by certain whatever type of things you are going to select out of these particular tools. तो ये जो मैटर है इसी के बेसिस पे, और दिस पर्टिकुलर objectives are only going to tell you that what type of promotion activity you have to draw. Again, previously also we have discussed that अगर आपकी लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के आप इंट्रोडक्शन स्टेज में हैं, तो आप प्रोडक्शन स्टेज जैसी होगी उस टाइम में आपकी प्रमोशन एक्टिविटी विल बी लाइक दैट. The advertisement mode will be high. The particularly sales promotion you can't use at the introduction stage. Again, you cannot use this relation mode. The reason behind that is अभी तो आपके पास कोई रिलेशन ही नहीं है पब्लिक के साथ बनाने के लिए. तो आप जब पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन स्टेज में रखते हैं, तो आपकी जो टूल्स है, वॉट एवर द टेक्निक यू आर गोइंग टू यूज, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस. अगेन, इफ यू आर एट द मेच्योरिटी में इंट्रोडक्शन करने की जरूरत है नहीं, लोग ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को जानते हैं. द पर्टिकुलर थिंग इज, बट आप कम्युनिकेशन कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहां आपने कम्युनिकेशन कम किया वहां आपके कॉम्पिटिटर्स में पर्टिकुलरली स्पेस लेना स्टार्ट कर देते हैं. बिकॉज मेच्योरिटी स्टेज में आपके जो कॉम्पिटिटर्स आपके साथ एग्जिस्ट करते हैं, दे आर एट वेरी फ्यू.
बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। आपके पास यहाँ पर जब कॉम्पिटिशन रहता है तो वेरी फ्यू रहता है, लेकिन बहुत मिनिमम, लाइक एक या दो मोनोपोली, या तो आपकी मोनोपोली रहेगी आपके इंट्रोडक्शन स्टेज में। But just imagine when the LCDs were there, only a particular Sony television, Sony company was there, those who were having with the LCD सबसे पहले, तो उनके पास तो कंपटीशन नहीं था, लेकिन प्रमोशन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हाई थी। जहां वो ग्रोथ में आए तो सैमसंग भी आ गया, एलजी भी आ गया, देयर वर एरिक्सन आल्सो, देयर वर नंबर ऑफ पर्टिकुलर, सॉरी एरिक्सन, the Micromax was there were Reconnect was there, number of people were existing in growth. Then again when maturity was there, तो आज के डेट में कितनी कंपनीज अवेलेबल है आपके एलसीडीज में? इट इज हार्डली, बिकॉज द मेच्योरिटी लेवल में आपकी कंपनी कम हो जाती है कॉम्पिटिटर्स की, लेकिन दे विल बी विद द वेरी स्ट्रॉन्ग इमेज। तो वो हर कोई अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज में मेच्योरिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। मेच्योरिटी में वो तभी पहुंचे हैं जब सबकी पर्टिकुलरली वो इमेज वैसी क्रिएट हुई है। अब उस पोजीशन में अगर आपको बना के रखना है तो प्रमोशन एक्टिविटीज विल बी equivalent to your competitors, it must be matching to your competitors, it must be not less than them, it must be again going to capture more and more customers। maturity में ज्यादा की बात नहीं है, जो है उसको बीट करके रखने की, मतलब वो वहीं पर रहे, या उस पर्टिकुलर को आप यहाँ से नया कैसे करें। एलसीडीज के बाद एलईडीज आ गई, एलईडीज का आना मतलब दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पीएलसी। एलईडीज का आना मतलब एलसीडीज जब अपनी मेच्योरिटी पे था तो एलईडीज आ गई और एलईडीज ने एक नया पीएलसी बना दिया। सेम कंपनी, सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सेम कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। द थिंग इज विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, विच टाइप ऑफ पीएलसी स्टेज, विच नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स ओवर देयर। आप सारे पॉइंट्स वहां देख सकते हैं। यू कैन हैव ऑल द थिंग्स, the stages matter, the product type of product matter, the particularly target market matter, the competitor matter। मतलब आपकी ये सारी चीजें ही आपको बताएगी कि आप किस टाइप की प्रमोशन एक्टिविटीज ड्रॉ करना है या कौन सी टूल को सेलेक्ट करना है। अभी तो हम टूल तक पहुंचे नहीं है, तो जब टूल तक पहुंचेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि टूल कौन सा सेलेक्ट करना है और किस टाइप के टाइप्स होते हैं। But here is why you are going to select a tool and this type of tool you are going to select. So you are going to select a tool on the basis of the first point, that is the budget availability. What is budget availability? Budget availability, पैसे कितने हैं आपके पास, कितने पैसे हैं, ये कौन बताएगा? आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपकी प्रमोशन एक्टिविटी करने के लिए कितना बजट रखा है, कितना बजट होगा इंट्रोडक्शन में? At introduction stage, what type of budget is required? Anybody? Hello? Is it connected? Yes, ma'am. Yes. Yes. Oh, at introduction stage, which type of budget has been required, or what level of budget is required for promotion activity? Ma'am, Will be high, high. ma'am. It is high, exactly. It will be highest. It will be the highest promotion activities का बजट होगा जब आप इंट्रोडक्शन स्टेज में होंगे। Why so? Reason behind that is आपको मार्केट में सबसे, अभी मार्केट क्रिएट करनी है तो सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना है। The maximum effort, maximum promotion you have to go with this particular thing. तो बजट अवेलेबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी, आप प्रोडक्ट की लॉन्चिंग तभी स्टार्ट करेंगे जब आपके पास पैसे होंगे प्रमोट करने के लिए। और जिन कंपनीज के पास पैसे नहीं होते प्रमोट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रमोशन एक्टिविटी नहीं करती है, प्रमोशन एक्टिविटी तो करती है। द मैटर इज वो उस लेवल की प्रमोशन एक्टिविटी करती है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो तो नहीं टेलीविजन पे ऐड दे पाते, वो तो पर्टिकुलरली नहीं आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल पाते। व्हाई इट इज सो? बजट मैटर्स। व्हाई इंट्रोडक्शन स्टेज में भी बजट मैटर्स, बट द थिंग इज लाइक दैट दे कैन नॉट स्पेंड दैट मच। तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू हैव द, क्या करती है कोई एक छोटी कंपनी होती है, ये एक छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो व्हाट दे आर गोइंग टू हैव विद द प्रमोशन एक्टिविटी, दे आर गोइंग टू नेटवर्क मार्केटिंग या माउथ टू माउथ पब्लिसिटी और या तो फिर फ्लायर्स,
फ्लायर्स देते हैं, आपके कॉलेज के बाहर खड़े होके फ्लायर्स बांटते हैं, या तो पर्टिकुलरली अपने फ्रेंड सर्कल्स में बोलते हैं, या 2 स्टूडेंट्स होंगे तो उनको बोलेंगे और को लेकर आओ। तो दैट वाज द हाईएस्ट फॉर देमसेल्व्स एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, व्हाट दे कैन अफोर्ड। So the matter is the budget available. As the budget at the promotion stage or at the particularly at any of the stage, whatever they will be having, so the budget availability is a matter on the basis of which the promotion activity is being selected. Again, अगर आपको न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देना है तो एक पेज फुल ऑफ द न्यूज़पेपर जो है उसका 1 लाख रुपीज का एक बार का एक पेज होता है एक दिन का। तो जस्ट इमेजिन अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ आपको 1 वीक तक एक पर्टिकुलर पेज में फुल पेज का एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है, एंड इट इज ओनली गोइंग टू कवर अ लिमिटेड नंबर ऑफ एरिया। जिस पर्टिकुलर एरिया का पेपर होगा, अगर छत्तीसगढ़ का पेपर होगा तो कॉमन पेपर में अगर आपने एक एडवर्टीजमेंट दिया है फ्रंट पेज में या एक फुल पेज का, तो इट इज गोइंग टू कॉस्ट 1 लाख फॉर 1 डे। तो ये कौन दे सकता है? जिसके पास पर्टिकुलर उतना बजट होगा। सिमिलरली अगर आपको रेडियो में देना है तो विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एडवर्टीजमेंट 35,000 50,000 का आपके सेकंड पे काउंट होता है। टेलीविजन में इट विल बी लैक्स। सिमिलरली इट विल बिलबोर्ड फॉर 1 मंथ अ बिलबोर्ड इज कॉस्टिंग मैटर करता है कि कहाँ लगा हुआ है। मेन रोड पे लगा है तो 1 लाख रुपए सिर्फ आपके 30 डेज की कॉस्टिंग होती है आपके पर्टिकुलरली। समटाइम्स इट विल बी मैटर, द मैटर इज द बिलबोर्ड कहाँ लगा हुआ है, कौन से प्लेस में लगा है, किसमें कितनी विजिबिलिटी है, कितने पर्टिकुलरली लोग उसका उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट से कनेक्टेड है, उसकी बेसिस पे बिलबोर्ड भी बाय होते हैं। आपके एडवर्टाइजर्स जो है वो बिलबोर्ड को खरीद के रखते हैं और अपने बिलबोर्ड लगाते हैं, उसकी बेसिस पे वो कंपनीज को सेल करते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट कितने दिन के लिए आपको लगाना है, उसके बेसिस पे दे आर गोइंग टू कॉस्ट। तो इट इज अगेन अ कॉस्टली। तो दोज कंपनीज दोज आपको अगर ये देखना है ना कि बिलबोर्ड किसका है, तो आप देखिएगा लास्ट में, या तो अगर किसी का एडवर्टीजमेंट लिखा है तो लास्ट में लिखा रहेगा द बिलबोर्ड बिलोंग्स टू हूम, और नहीं तो अगर बिलबोर्ड पूरा खाली है तो बड़ा बड़ा लिखा रहेगा ASA, यू कैन कॉन्टैक्ट विद दैट एंड अ दीपक एडवर्टाइजर समथिंग, जो लोकल में अगर आपके एडवर्टाइजर्स को देखना है आपको तो दे own those particular type of billboards. So the thing is like that, budget matters what type of promotion activity or what type of promotional tool you are going to select. The second thing, the stage or in PLC, as I told you, if you are at the introduction stage, the promotion activity will be on the basis of that. If you are at a maturity, if you are at a declining stage, again, declining stage doesn't stop your promotion activity, it will reduce, it will be the least और इट विल बी वेरी मिनिमल, आप खत्म नहीं करते। नोकिया के प्रोडक्ट्स मार्केट में आना बंद हो गए थे तो भी पर्टिकुलरली वो प्रमोशन एक्टिविटीज कंटिन्यूसली करते जा रहे थे। क्यों कर रहे थे? ताकि लोग आपको आप उनको भूलना चाहे, या पर्टिकुलरली वो अननेसेसरी दे आर क्रिएटिंग देयर पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट अननेसेसरी, जबकि उनको पता है मार्केट में प्रोडक्ट उनका लीस्ट बॉर्डर्ड है, पीपल हार्डली मैटर्स अबाउट देयर प्रोडक्ट नाउ, बट स्टिल दे आर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो बार बार आपको रिमाइंड करा रहे थे कि हम एक कंपनी ऐसी भी है। वाई सो? द रीजन यू एंड दैट इज बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि आप उनका नाम भूल जाए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज जिनका नाम आप भूल चुके हैं बिकॉज दे हैव नॉट रिमाइंडेड यू, दो दे हैव डिक्लाइन, दो दे वर आउट ऑफ द मार्केट, देन ऑल्सो बिकॉज उन्होंने अपने आप को रिमाइंड नहीं कराया तो पर्टिकुलरली दे वर not known into the mind of the customers. So the thing is like that, whatever the stage of the PLC is, the promotion activity will be on the basis of that. अगर मैंने आपको बोला कि इंट्रोडक्शन स्टेज में आपकी प्रमोशन हाईएस्ट रहती है तो आप IMC के सारे एफर्ट लगा देते हैं, एवरी एफर्ट यू हैव टेकन। आफ्टर दैट जब आप ग्रोथ स्टेज में आते हैं तो आप इसको रिड्यूस करने, कम नहीं, एकदम खत्म नहीं कर देते, आप रिडक्शन ऑफ द IMC स्टार्ट कर देते। अगेन अब मेच्योरिटी में आते हैं तो ज्यादा पैसे लगा के कोई मतलब नहीं है, बट आप बंद भी नहीं कर सकते, इट विल बी मॉडरेट और इट विल बी लो, यू मे से। IMC मेच्योरिटी स्टेज में या आपकी प्रमोशन एक्टिविटीज मेच्योरिटी स्टेज में लो रहती है। क्यों? आपको सिर्फ रिमाइंड कराना है, सिर्फ प्रमोशन एक्टिविटी। अगर आप देखेंगे ना तो एडवर्टीजमेंट जो इंट्रोडक्शन स्टेज में पूरे आते थे वो मेच्योरिटी स्टेज में ना कट करके सिर्फ ऑफर्स बता देते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट था, इसके साथ में अब बाय 1 गेट 1 है, या इसके पैक्स में कैशबैक है, या ये अब एक्स्ट्रा 5% है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ आपको प्रमोशन एक्टिविटीज कम कर दी और उसके साथ में
सिर्फ आपका सेल्स प्रमोशन को ऐड कर दिया, तो नया ऐड भी नहीं बनाना पड़ा, उसके साथ में उनका नया कम्युनिकेशन भी हो गया, दैट वाज सेल्स प्रमोशन। तो प्रमोशन एक्टिविटी मेच्योरिटी में जो है वो आपकी लो होती है, और डिक्लाइन में आप सिर्फ देखना, डिक्लाइन में तो और वही एडवर्टीजमेंट जिसमें आपने प्रमोशन ऐड किया था, सेल्स प्रमोशन ऐड किया था, सब हटा देते हैं और बता देते हैं दिस इज अ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। इतना छोटा, जो पहले पूरा 30 मिनट का ऐड आता था, कट करते 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 वो हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का हो जाता है। 30 सेकंड्स का ऐड आता था, वो कट करते करते आपको 2 या 3 सेकंड्स का कर देते। व्हाई सो? द रीजन बिहाइंड दैट इज द मोटिव बिहाइंड दैट वाज ओनली विद द रिमाइंडिंग ऑफ द ऐड। So the thing is, stages in product life cycle matters. Next is type of product. Which type of product? Whether the product is tangible in nature, whether the product is intangible in nature, that matters. Services है तो उसके एडवर्टीजमेंट में आपको सर्विसेज की फीजिबिलिटी बतानी पड़ेगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी बतानी पड़ेगी, कितने वारंटी गारंटी, कितने दिन के लिए है, कितने ईयर्स के लिए है। मैटर विल बी डिफरेंट। अगर प्रोडक्ट है तो आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन बताना पड़ेगा, उसकी कंपैरिजन बतानी पड़ेगी, आपका आपके नॉलेज के साथ में उसकी मैचिंग कितनी है ये बतानी पड़ेगी। तो मैटर इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, बार बार एडवर्टीजमेंट देने पड़ेंगे क्योंकि इतने जल्दी मार्केट में चेंज होते हैं। और स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स है तो आप उसके हिसाब से पर्टिकुलरली देते हैं। कार्ड है तो आप हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कार का ऐड देंगे तो लोग खरीद लेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। जब उनको खरीदना होगा वो तभी खरीदेंगे। लेकिन आप उनको पर्टिकुलरली, अगर प्रोडक्ट नया है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दीजिए, इट्स ओके। लेकिन आप बार बार प्रोडक्ट को रिमाइंड कराएंगे या बार बार उसका एडवर्टीजमेंट देंगे तो लोग बाय नहीं करेंगे, बिकॉज जब टाइम आएगा वो तभी बाय करेंगे। बट एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में ऐसा है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कि आप बार बार अगर एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे तो आपके कॉम्पिटिटर या अदर ब्रांड जो है वो उसका प्लेस ले लेंगे। So the thing is like that, the type of product, the category of product, the usage of a particular product matters when you are going to choose with the promotion activity. Come to the next, that is type of purchase decision. What purchase decision? Type of purchase decision is when to buy, the occasion, the festival season, where when the particular people are going to buy the particular thing, and from where they are going to buy a particular type. आप कहाँ से buy कर रहे हैं और क्यों buy कर रहे हैं? The thing is like that. आपने ऑनलाइन बाय किया, आप रिटेलर्स के थ्रू बाय किए, और आपने कब बाय किया. The thing is, this type of decision is being going to take at what time the promotion activities are again going to be drawn on the basis of that. That the thing is, परचेजिंग डिसीजन कहाँ, क्यों, कब, कैसे ले रहे हैं आप, उसके बेसिस पे प्रमोशन एक्टिविटीज ड्रॉ होती है. आपको आपके पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी विद द डीमार्ट जब अभी पर्टिकुलर लॉकडाउन के ड्यूरेशन में दे हैव स्टार्टेड विद ऑनलाइन मार्केटिंग बिकॉज परचेजिंग डिसीजंस ऑफ द पीपल मैटर्ड एंड दे इट वाज चेंज. और सडनली जहाँ लॉकडाउन खत्म हुआ, सडनली जहाँ पीपल कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, they have started with they have closed with the online selling of the goods. The reason behind that is the purchasing decision changed. The type of purchasing decisions are going to change the type of promotion activity. They have changed from direct marketing to the personal selling. The reason behind that is because the type of purchasing decision has been changed. Next is target market characteristics. What is target market characteristics? Age, income, occupation, gender, marital status, everything is been there. तो आपकी जितने भी डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, टारगेट मार्केट कैसा है, आपके ओल्ड एज पीपल, इफ दैट पर्टिकुलर टारगेट मार्केट इज देयर, द थिंग्स आर बीन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली. So the as the target market will be the particular promotion activity, because old age people are being more fixed towards televisions only. तो आपको अगर या न्यूज पेपर्स ओनली, तो आपको अगर उनके लिए प्रमोशन एक्टिविटीज ड्रॉ करनी है तो यू आर गोइंग टू थ्रो इट इनटू द पर्टिकुलरली विद द this type of promotion activity only. Okay.